चाय की चुस्की विराट ले रहा होगा जब सौरव गांगुली ने उस स्टेटमेंट दिया कि मैंने विराट से पूछा आप T20 कैप्टेंसी क्यों नहीं कंटिन्यू करते। कुछ दिनों बाद विराट का जवाब आया कि सौरव गांगुली एक्सपोज हो गए। तो हुआ यूं कि विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया आज साउथ अफ्रीका जाने से पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है हर सीरीज के पहले होती है। कोई भी टूर हो तो कप्तान कोई भी हो इंडियन टीम का उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ती है। मीडिया सवाल पूछता है, जवाब देना है कप्तान। तो जाहिर है विराट को काफ़ी सवाल आने वाले थे ऑन इस रिफ्ट विद रोहित शर्मा। उनको कप्तानी ओडीआई से निकाला गया और फिर क्या वो खेलेंगे साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज रोहित शर्मा के अंदर। क्या जवाब हुआ, चलिए देखते हैं। You had earlier spoken about how you wanted to lead the ODI team in the World Cup 2023 World Cup. So can you please give a clear picture of the communication with you that the board or the chairman or selectors would have had? And another question, would you be available for the ODI series against South Africa? Well, I was and I am available for selection all this time. You should not be asking me this question. Honestly, this question should be asked to people who are writing about these things and their sources. Because as far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. So there were a few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So all these people who are writing these things and their sources, to me they're absolutely not credible, writing lies and not to me, because my communication with BCCI on this issue has not happened that I want to rest. Answering your first question, whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. How much you will miss Rohit Sharma's services in the South Africa Test Series? Rohit was India's top run getter in English conditions recently, last month. Well, we'll miss his abilities a lot. I mean, he's proven in England already that he's really worked his test game out, and the opening partnership was very important for us to play in that series that we did. So obviously, with his experience and his skill, we will miss his qualities. But having said that, I think it's an opportunity for someone like Mayank and KL to step up and solidify that start for us. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विराट का देखने के बाद ये तो जाहिर हो जाता है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन इश्यूज है इंडियन क्रिकेट में। जो कहना चाहिए वो लोग कह नहीं पाते, जो कन्वे करना चाहिए वो कन्वे नहीं कर पाते, हमेशा की तरह जिस तरह से हमेशा होता आ रहा है। मीडिया तो हमेशा क्लूलेस रहता है, सोर्सेस पे काम करता है। सोर्सेस चाहे वो जो बता दे, जो प्लांट कर दे, जो कह दे, वो सही हो या गलत, तो मीडिया उनके कहने पे चलता है। तो आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कभी आपको ठीक से मिलेगी नहीं कि अंदर की क्या बात हो रही है, क्या होने वाली है। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो नहीं आती, और जो नहीं आनी चाहिए वो आ जाती है। कोई इंजर्ड हो गया तो बीसीसीआई कभी रिलीज ठीक से भेजता नहीं कि इंजर्ड कौन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन रिप्लेसमेंट होने वाला है। तो बड़ा ही मैटर कंफ्यूजिंग है, नहीं है, मज़ा नहीं आता जब ऐसे अनप्रोफेशनल
की तरह रन करता है बीसीसीआई। तो इनको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। और ख़ास करके हम जब एक्सपेक्ट किए थे सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर अगर आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रेसिडेंट हैं, और तो प्रोफेशनलिज्म शायद आएगा सौरव गांगुली की वजह से, और प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा या प्लेयर्स की बातें सुनी जाएगी। मगर यहाँ पर तो उल्टा रिफ्ट हो रहा है उनके ज़माने के जैसे। विराट ने तो डिनाई कर दिया कि उनका कोई रिफ्ट नहीं है रोहित के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, किसका नहीं होता। ये सब ध्यान थोड़ी देने की बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंडिया खेल रहे, परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को जिताएं, तो आपको खेलना साथ में ही है कि नहीं। ये बात ओडीआई सीरीज की मीडिया ने स्पेकुलेट किया, पता नहीं कहाँ से आई स्टोरी और बन गई, तो विराट ने साफ साफ डिनाई कर दिया। यही ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुल के और बताएं सबको। क्रिकेट रिलीजन कहा जाता है, और यहाँ पर आप अगर स्पेकुलेट करने लगे, फैंस को छोड़ दें, तो अपनी अटकलें लगाने लगते हैं। और अगर अपनी अटकलें लगाएं तो काफ़ी सारी फैंटेसी स्टोरीज तो अपने आप ही बनने लगती है। कितना मुश्किल हो जाता है एक फ़ैन के लिए जो कि इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, क्रिकेटर्स के लिए, वो गेम पे फोकस करें या कंट्रोवर्सीज पे। यंगस्टर्स हैं, है कि नहीं, यंगस्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है आज के ज़माने के यंगस्टर्स। आईपीएल जनरेशन है, तो आपको बहुत संभाल के हैंडल करना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिर भी समझदार यंगस्टर्स हैं, रोहित और विराट। यंगस्टर्स भी नहीं कहेंगे, मिडिल एज में धीरे धीरे पहुंच रहे। मुझे थोड़ा दुख हुआ पिछले एक हफ्ते से, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा था इस पे क्या कमेंट करूँ। मगर आज मैं सोचा आज मौका है, करना चाहिए, कहना चाहिए लोगों से। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट करिए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज द स्पोर्ट्स जर्नल्स पे आने वाली है। क्योंकि मैं फील्ड पे बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस हम लेंगे। न्यू ईयर इज गॉट बी समथिंग रियली एक्साइटिंग। गुड बाय।